See, from this computer, let the MAC address of the computer is 0A, and let's say its IP address is 10.1, right? This computer wants to go to the Gmail. यही discuss कर रहे थे ना हम? Yes, sir. Now see, first of all, the things will start from application layer. But before application layer, I will open a browser and I will write www.gmail.com. Hi, Anna. Yes, sir. So friends, that gmail.com is nothing else but just an information. Hi, Anna. Yes, sir. It is actually nothing but just an information, right? So in that information, application layer will add its header. What is header? मैंने ये नहीं बोला कि क्या हेडर यूज करेगा. आई एम आस्किंग व्हाट इज अ हेडर. हेडर होता क्या है? सी फ्रेंड्स, हेडर इज समथिंग जैसे जो एडिशनल चीज ऐड होती है, राइट? राइट, फॉर एग्जांपल ऑन द एप्लीकेशन लेयर दिस https is added. Yes or no? Yes, sir. In order to access the Gmail, https has been added. In order to open the FTP would be added, right? Right or wrong? Yes, sir. So actually I'm writing is just the information. This header is added on the application layer, so it is called application header. ठीक है? The header which will be added on the presentation layer would be called a presentation header, right? चलो. Now, friends, do we know what is payload? No. सर इसको पकड़ दो, आप इसको पकड़ लो. हाँ, कुछ नहीं है उसमें. Now see, I have this marker with me, right? So I am giving this marker to him. क्या नाम है आपका? अभिजीत. Abhijit. So for Abhijit, this marker is a payload. Whatever he has received is a payload for him, right? उस marker के साथ में he has added this wallet with it, right? तो जोड़ना, बस रख दो साथ में, ऐसे ही पकड़ लेना, वो साथ में बहुत है. So now he actually what he did is he encapsulated the wallet with the payload, right or wrong? Encapsulation मतलब कोई चीज जोड़ना. See, this is called decapsulation of this kada from my body, right? And this is encapsulation of kada. सीधी सी बात है. Encapsulation क्या होता है, decapsulation क्या होता है? Is that clear or not clear? Yes, sir. Okay, so see, he has encapsulated this wallet, this payload, this wallet he has encapsulated in the payload, right? Please give it to him. This wallet along with the marker is a payload for him, right? उस वो इसके अंदर मोबाइल को एनकैप्सुलेट कर देगा. कर दे भाई, अब मेरे को दे दे. अब ये मेरे लिए पेलोड हो गया पूरा. देखा कितने फायदे मेरा, मैंने सिर्फ एक मार्कर चलाया था, मेरे को वॉलेट और मोबाइल ही मिल गया मुफ्त में. तो दोस्त, do we get that what is the payload and what is encapsulation and what is decapsulation? Yes, sir. Application layer पे HTTPS is the application header, right? Yes, Because HTTPS is encapsulated on that. HTTPS ही तो encapsulate हुआ है ना? Okay. Now presentation layer has received this complete information is a payload for him, right? Along with the payload, I know that it could be read in HTML format, right? So this is HTML is the header for presentation layer. Agree? Yes, sir. Then session layer. Whatever I have received as a payload, along with the payload, I will do is session details. याद है कुछ कि नहीं है? So I just have नहीं sir. So I just have added the session details over there. Any issue with that? Sir. Clear to all? Yes, sir. Good. So friends, now it comes the transport layer. अब those transport layer को we really have to give a thought. We really have to analyze it deep. From transport layer, network layer, data link layer and physical layer. These four layers are where the work of a network engineer is based on. Right? तो ये चार layers हमें properly clear करनी ही करनी है. Ready for that? Yes, sir. Let's rock and roll. सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर. क्या लिखा मैंने? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ OSI लेयर. अब देखो, बिफोर स्टार्टिंग दिस, सी यार, पहले एक चीज देखो दोस्त, एप्लीकेशन लेयर को वी कॉल एज हार्ट ऑफ OSI. उसका रीजन क्या है कि जब ये वाला डिवाइस और ये वाला डिवाइस
सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी बोल दी मैंने, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर इज द हार्ट ऑफ ओएसआई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इफ दीज टू डिवाइसेस वांट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट दोस्तों, यहाँ पर वी विल डिसाइड अ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपर एप्लीकेशन लेयर से काम नहीं शुरू हो रहा, काम तो शुरू हो रहा है वैसे, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर ने ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन कर लिया कि भाई हम लोग कितनी कितनी स्पीड से अपने डेटा को सेंड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, भाई इस कंप्यूटर ने बोला कि आई कैन सेंड यू 5 MB पर सेकेंड, ठीक है, या मान लो 10 MB पर सेकेंड, तो ये बोलेगा भाई बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन मैं सिर्फ 5 MB ही रिसीव कर सकता हूँ एक बार में, हाँ है ना। फिर ये क्या बोलेगा, ओके भाई ठीक है, भाई मैं एक दिन में आपको पूरे का पूरा वो पूरे के पूरे 3-4 चैप्टर मैं आपको एक ही दिन में करा सकता हूँ, लेकिन अब मुद्दे की बात तो ये है ना कि आप लोग कितने समझ सकते हो एक दिन में, हाँ है ना। बस तो फिर मैं आपको उस पूरे का पूरा CCNA एक महीने की जगह मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं आप बहुत अच्छे पेज से चलूँ तो मैं दोस्त आपको मुश्किल से 10-12 दिन में करा दूंगा, यही 2-3 घंटे की क्लास के हिसाब से भी। ठीक है, 10-12 क्लास बहुत है, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि 2-2 घंटे के हिसाब से, भाई तो चाहे एक महीना भी चल ले, हाँ या ना, कि तू 3 घंटे पढ़ा सकता है दोस्त, आई अप्रिशिएट, बट मैं नहीं समझ सकता 3-3 घंटे, मेरे बस की ना है, हम पे ना हो ही पाए भैया, ऐसे ही बोलता है ना कुछ लोग। तो वही अब सीधी सी बात है कि भाई मेरे से इतना नहीं हो पाएगा, तो भाई तू धीरे धीरे चल ले, सही बात है। तो अब ये तो है नहीं कि मैं ज़बरदस्ती क्या बोल रहा हूँ, ना भाई मैं तो चलूँगा अपनी मर्जी से, तुम ही तेज हो जाओ। अब तुम तो तेज नहीं हो सकते, लेकिन मैं तो स्लो हो सकता हूँ ना, बस एक बंदा जिस एक बंदे की किसी की मानेंगे दोनों में से, है ना, बस वही हो रहा है। तो ये भी मान लिया कि चल भाई ठीक है 5 MB पर सेकंड स्पीड से सेंड कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्त इससे क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में एक विंडो साइज बन गया। विंडो साइज क्या है कि भैया हम 5-5 MB की उससे चलेंगे, हाँ या ना, हाँ है ना। तो दोस्त दिस इज कॉल्ड विंडोइंग। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू इज विंडोइंग के बारे में, और इस विंडोइंग के थ्रू मैं फ्लो को कर रहा हूँ कंट्रोल। ठीक है, विंडोइंग एंड फ्लो कंट्रोल, आई वांट यू टू सर्च अबाउट इट, बुक में मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों को भी बुक नहीं मिली है आप लोग मुझसे PDF ले सकते हो, नेट पे सर्च करो, जैसे मर्जी सर्च करो। बट दोस्त देख, एक मेरी आदत रहेगी कि मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको टास्क में देता रहूँगा, ठीक है, बिकॉज आई नो कि घर जाने के बाद हम लोग उनको पढ़ने में विश्वास रखते नहीं है, भावनाओं में बह गए हो। अब देखो यार, यहाँ पर क्या है दोस्त, विंडोइंग एंड फ्लो कंट्रोल आर द टू टॉपिक्स आई वांट यू टू सी अबाउट इट। एक ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ क्या होता है, राइट। अब देखो क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पर ना इस वाले में ट्रांसपोर्ट, पहले ट्रांसपोर्ट लेयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज TCP एंड वन इज UDP। TCP बोले तो एब्सोल्युटली राइट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, शांत करवा दे इसको, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट। नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। दोस्तों जो TCP है ना, TCP works on three-way handshake, right? Now what is this three-way handshake? कि भाई I will send you a synchronization message, right? And then you are supposed to give me an acknowledgement for that. And if you have a synchronization, you also can send me the synchronization request. समझ में आई ना बात? भाई मैंने आपको बता दिया अपनी कंडीशन, आप मुझे उसके लिए हाँ ना कर दो, फिर आप बोलो कि हाँ भाई तू अब मेरी कंडीशन भी ये है, एंड देन फाइनली आई विल सेंड यू एन एक्नॉलेजमेंट, राइट, एंड वी विल एग्री टू अ म्यूचुअल डिस्कशन, राइट। अब हम दोनों के बीच में बन गया है कि भाई दो विंडो है, ठीक है, मान लो दो विंडो का साइज बना है, तो मतलब 1 2, आई विल सेंड यू 2 विंडो, राइट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बोथ द केसेस में विंडोइंग तो होगा ही होगा, ठीक है। हम लोग दो दो विंडो आपको सेंड कर रहे हैं। अब द थिंग इज कि इफ इट इज अ UDP, then I will send you the first two window, then I will send you the third and fourth window, then I will send you the fifth and sixth window, right?
दैट्स द वे वी विल कीप ऑन गोइंग, राइट। अब देखो टीसीपी में देखो दोस्त क्या फर्क है। टीसीपी में है कि अगर हमारा विंडो 2 का हुआ है ना, तो आई विल सेंड यू 2 एंड देन आई विल वेट फॉर 1 एक्नॉलेजमेंट। थर्ड वाला एक्नॉलेजमेंट होगा, फिर मैं आपको चौथा और पांचवा सेंड करूंगा, और फिर 6th वन वुड बी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम यू, ठीक है। फिर 7th एंड 8th मैं आपको सेंड करूंगा एंड 9th वुड बी एक्नॉलेजमेंट। अब अगर इसने एक्नॉलेजमेंट में मुझे बोला कि भाई मुझे 7th वाला तो मिल गया बट 8th वाला मुझे नहीं मिला, तो आई विल सेंड द 8th अगेन। समझे? Yes, sir. तो मतलब सारी की सारी चीज एक्नॉलेजमेंट पे चल रही है ना। तो दोस्त इफ इट इज वर्किंग ऑन एक्नॉलेजमेंट, it is reliable, right? Because of acknowledgement, and here there is no acknowledgement, so it is unreliable. समझे? Now friends, one more thing, कि the TCP is slower and the UDP is faster. Now the question is that why UDP is faster and TCP is slower? This could be a question. Very acknowledgement. Due to acknowledgement, Very up to date for the acknowledgement. because it has to wait for an acknowledgement, right? Now see friends, let me be very clear. Technically speaking, you are right, right? In fact, let me say, literally speaking, you are absolutely right. Literally आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, but technically your words, your technically you are right also, but technical words are not right, right? अब देखो टेक्निकली आप इसको कैसे बोलोगे। मैंने बोला हर एक चीज का हेडर बनता है ना। जो यूडीपी है, यूडीपी के हेडर के अंदर क्या कोई भी एक्नॉलेजमेंट का फील्ड होगा? नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो मतलब उसका हेडर साइज छोटा हो गया। Yes. जबकि टीसीपी के हेडर में आई हैव अ प्लेस फॉर एक्नॉलेजमेंट, राइट? सो इन द हेडर देयर वुड बी अ प्रॉपर सेगमेंट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, हाँ है ना। So that means the length of the TCP header is 20 bytes. It adds the 20 bytes header, जबकि ये कितना करता है? Only 4 bytes header, right? Yes friends, see, the reason is 20 bytes header, the size has been increased. The only reason is because of acknowledgement thing, right? But still, technically speaking, your words should be header size is the issue, right? Technically speaking, header size is the issue. Am I clear with that? Yes, sir. Very good. तो फ्रेंड्स अब एक बात बनती है बहुत जरूरी, कि अगर टीसीपी अनरिलायबल है, टीसीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, और सॉरी यूडीपी अनरिलायबल है, यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, तो वेयर डू वी यूज यूडीपी? ये क्वेश्चन अच्छा है। Video call. ओके अब इस चीज को किसी एक चीज में बताओ ना, इस तरह से तो पता नहीं क्या क्या बोल दूंगा। फॉर वीडियो चैट, फॉर ऑडियो चैट, फॉर फोन, फॉर गेमिंग, हाँ Real time. दैट्स इट। लाइव सिनेरियो, monitoring, good. But whatever is going on live, we need it. We need UDP, right or wrong? For example, it could be voice traffic, है ना? It could be video traffic, right? Now see one thing, यार UDP traffic doesn't wait for any acknowledgement, right? And TCP traffic waits for an acknowledgement, right? तो दोस्त यूडीपी ट्रैफिक में रिलायबिलिटी कम है और उसके अंदर रिलायबिलिटी ज्यादा है, यही मानते हो हम? यही मान रहे हैं हम लोग। दूसरी तरफ दोस्त, अगर मुझे प्रायोरिटी देनी है किसी ट्रैफिक को, प्रायोरिटी मतलब कि मेरा पहले टीसीपी ट्रैफिक जाए या यूडीपी ट्रैफिक जाए, तो मैं किसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा? यूडीपी को। यूडीपी क्यों? क्योंकि देखो यार, यूडीपी ट्रैफिक मतलब मैं आपको फोन करके बोल रहा हूँ कि भाई 10 मिनट बाद मुझे मिल जा, ठीक है। अब मैं आपको अगर मेरी बात नहीं सुनी तो आप इंस्टेंटली बोलोगे क्या? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? ठीक है भाई, मैं रिपीट कर दूंगा, साथ साथ हो गया ना। अब मैं बोलूँ भाई मुझे 10 मिनट बाद मिल जा, 15 मिनट बाद उसका आवाज सुन रही है, फिर वो मुझे बोल रहा है भाई क्या, सॉरी रिपीट कर सकते हो?
या फिर चलो उसको सुनेगी एक ही बार में, 15 मिनट बाद उसको सुनिए, तो उस 15 मिनट के बाद 10 मिनट में आएगा वो, है ना? तो मैं तो बिना बात वेट कर रहा हूँ ना, नुकसान हो गया मेरे को, टाइम खराब हो गया मेरे को, सुन नहीं बात बस। तो दोस्त यूडीपी ट्रैफिक को मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी ना, तो मतलब क्या है कि यूडीपी ट्रैफिक को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। फॉर अ यूडीपी ट्रैफिक आई डोंट नीड एक्नॉलेजमेंट, राइट? तो इफ आई डोंट नीड एक्नॉलेजमेंट तो मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, सही बात है। और जबकि जो टीसीपी ट्रैफिक है, टीसीपी ट्रैफिक को मैं कम प्रायोरिटी दूंगा कि भाई अगर तुझे नहीं सुना तो मैं वापस सेंड करूंगा, क्योंकि तू मुझे एक्नॉलेजमेंट देगा, तूने मुझे एक्नॉलेजमेंट बोला कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं मिली है, तो मैं वो वाला पार्ट आपको वापस आई विल सेंड इट अगेन। यस और नो? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? टीसीपी वर्सेस यूडीपी इज क्लियर? हाँ सर वो आपने बताया था टीसी वो यूडीपी वो टीसीपी का जो केस है उसमें 1 और 2 पैकेट सेंड हुआ है, उसने एक्नॉलेज कर दिया, उसने एक्नॉलेज किया कि सेकंड वाला है वो लॉस हो गया, वो मुझे मिला नहीं। तो मैं सिर्फ सेकंड वाला सेंड करूंगा, फर्स्ट वाला नहीं। तो उसके साथ थर्ड भी जाएगा या सिर्फ सेकंड ही जाएगा? सिर्फ सेकंड जाएगा। सर यूडीपी में डेटा लॉस होने का चांस नहीं है। नहीं है? हाँ है ना ये, लेकिन यूडीपी में ये देखो ट्रैफिक लॉस होने के चांसेस कैसे हैं यार। सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है, सामने से वो पाकिस्तानी क्या नाम है बहुत तेज बॉल कराता है, शोएब अख्तर, शोएब अख्तर ने बॉल कराई है, ठीक है? अब भाई लास्ट बॉल है मैच की, एंड इफ सचिन हिट्स अ 4, नंबर 1 सचिन विल गेट अ सेंचुरी, एंड ऑल्सो एक सिंगल रन से इंडिया जीत भी जाएगा, ठीक है? तो भाई सचिन सचिन इज जस्ट अबाउट टू हिट द बॉल, और जैसे ही वो बॉल पे हिट करने वाला इतनी दूर रह गया, आपके घर पे लाइट चली गई। अब एक बात बताओ, आपके घर पे लाइट वो 2 घंटे बाद आई है, तो डू यू रियली थिंक कि सचिन रात को 2 बजे बैट पकड़े खड़ा रहेगा कि भाई के घर पे लाइट नहीं आ रही यार? ये तो नहीं होगा ना। बस अब देखो, हाँ टाटा स्काई, वेरी गुड, रिकॉर्डिंग कर लियो तू। अब देखो दूसरी बात, और पेन ड्राइव जरूर लगा लियो वरना बहुत दुखी करती है वो। अब दूसरी चीज, सी लेट्स टेक इट द अदर वे। द अदर वे इज कि भाई मैच हो रहा है, मैच में वो बॉल करा रहा है शोएब अख्तर, राइट? तो व्हेन ही इज अबाउट टू थ्रो द बॉल सडनली थोड़ा सा थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो खिच पिच दिखता है ना, वो सही से बॉल नहीं करा रहा, वो रुक रुक के अटक अटक के डांस कर करके बॉल करा रहा है। तो अब उस भाई ने वो गाड़ी चला दी, तो उस बंदे ने वो बॉल कराई, ठीक है? तो थोड़ा सा अटकेगा, फाइनली बॉल तो जाती दिखेगी ना। कभी ऐसा होता है कि भाई उसने सचिन ने शॉट तो पहले मार दिया, वो बॉल बेचारा बाद में करा रहा है? ऐसा होता है कभी? क्योंकि दोस्त सीधी सी बात है, जो पैकेट मुझे पहले रिसीव होंगे वो पैकेट मेरे पहले आगे ट्रांसफर करूंगा, जो बाद में हो रहा है वो बाद में। क्या हाल है? क्या हाल है? वेरी गुड। कौन था ये? हाँ सपोज दैट अपन 2 मिनट में कम्युनिकेशन हो रहा है, अपन वहाँ पे यूडीपी यूज कर रहे हैं, ठीक है? कुछ सेकंड्स के लिए अगर उसका वहाँ से डेटा फ्लो हो रहा है, वो कुछ रिक्वेस्ट या वो सेंड कर रहा है। चलो अब देखो दोस्त, टीसीपी वर्सेस यूडीपी क्या होता है, ये चीज क्लियर है? अब देखो दोस्त, इस लेयर पे क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द सर्विस। बट फ्रेंड्स बिफोर लर्निंग अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस, लर्न अबाउट दिस थिंग के देर आर सम पोर्ट नंबर्स, मालूम है? हाउ मेनी, व्हाट आर द पोर्ट नंबर्स? पोर्ट नंबर इज अ लॉजिकल गेटवे फॉर अ टाइप ऑफ ट्रैफिक, राइट? टाइप ऑफ ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक वो HTTP का भी हो सकता है, HTTPS का भी हो सकता है, FTP का भी हो सकता है, DNS का भी हो सकता है, DHCP का भी हो सकता है, SMTP का भी हो सकता है, POP3 का भी हो सकता है, IMAP का भी हो सकता है। वैसे मैं बोलूंगा नहीं है कि करके सारे, क्योंकि टोटल 1024 टाइप के हैं, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा यार। 1024 तो सिर्फ पोर्ट है, और भी बहुत चीज़ होती है। अब देखो यार, लॉजिकल गेटवे मतलब लॉजिकल, ये चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, समझ रहे हो मेरी बात को? फिजिकली डजंट एग्जिस्ट बट यस लॉजिकली इट इज देयर। अब देखो क्या हो रहा है यार, ये मेरा कुछ पहले तो दोस्त कुछ कंप्यूटर्स कुछ पोर्ट्स हैं, टोटल पोर्ट नंबर की रेंज होती है 0 से लेकर के 65535, जिसमें से कुछ होते हैं रिजर्व्ड पोर्ट्स, और यू कैन कॉल देम वेल नोन पोर्ट्स, कुछ भी बोल लो। ये क्या होते हैं? दे आर फॉर द
रिसेप्शन ऑफ सर्विस, रिसेप्शन ऑफ ट्रैफिक और सर्विस, कुछ भी लिख लो, ठीक है। रिसेप्शन ऑफ सर्विस, इसकी रेंज क्या होती है दोस्त, 0 से लेकर के 1023 तक। अदर वन इज कॉल्ड ओपन पोर्ट और इट कुड बी कॉल्ड अननोन पोर्ट्स। दे आर फॉर द, एक रिसीव कर रहा है मतलब रिसेप्शन, और एक जो ट्रांसमिट कर रहा है मतलब ट्रांसमिशन, हाँ या ना। अच्छा, अब देखो यार दोस्त, ये जो वेल नोन देखो कैसे होते हैं, जो वेल नोन पोर्ट्स है टोटल तो दोस्त 1024 पोर्ट्स है। तो 1024 को याद रखना इजी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल है, बट इजी नहीं है याद। तो कई बंदों को पीरियोडिक टेबल भी होती है, खैर तो इजी नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्त जो पोर्ट्स हमारे यूजुअली यूज होते रहते हैं उनको तो याद कर लेना। जैसे कि पोर्ट नंबर 20 एंड 21 इज फॉर FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 22 इज फॉर SSH, सिक्योर शेल। 23 इज फॉर टेलनेट। 25 इज फॉर SMTP। और कोई पोर्ट 53 इज फॉर DNS है। हाँ 80 पोर्ट, 80 तक तो आ रहा हूँ, रुको। उससे पहले 67 एंड 68 है मेरे DHCP के लिए, STP नहीं, DHCP के लिए, हाँ 161 एंड 162 SNMP वहाँ भी आ रहे हैं, रुको। पोर्ट नंबर 69 इज फॉर TFTP। पोर्ट नंबर 80 इज फॉर HTTP, DNS मतलब डोमेन नेम सर्वर। पोर्ट नंबर 81 इज फॉर HTTP1। पोर्ट नंबर 110 इज फॉर POP3। पोर्ट नंबर 143 इज फॉर IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और 160 एंड 161 इज फॉर SNMP, SMTP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। 443 इज फॉर HTTPS, मुझे नहीं है और यार। पोर्ट नंबर 520 इज फॉर RIP। पोर्ट नंबर 521 इज फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। RIP का मतलब RIP NG मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन है। IPv6 का पोर्ट, हाँ RIP NG IPv6 में काम करता है। हाँ मेरे को लगा कह रहा है IPv6 का पोर्ट बताओ, मैं अभी उठ के मारने वाला तेरे। अच्छा, अब दोस्त देखो क्या होता है, ये तो कुछ पोर्ट्स हैं यार जो हम यूज़ करते रहते हैं, मेरे को भी याद थे, बाकी मेरे को भी सारे तो याद है नहीं, सीधी बात। अब देखो यार, इस कंप्यूटर से अगर मैं HTTP के पास जाना चाहता हूँ तो क्या होगा, मेरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी दोस्त, पोर्ट नंबर HTTPS के पास, जीमेल के पास जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन बाहर जाएगी दोस्त किसी भी ओपन पोर्ट से, मतलब 1024 से 65,535 का कोई भी पोर्ट हो सकता है। यहाँ से तो ये इन्फॉर्मेशन बाहर जाएगी, मान लो 1025 पोर्ट से, और ये हिट कहाँ पर होगी, पोर्ट नंबर 443 पे, क्योंकि HTTPS के लिए तो 443 है ना। फिर यहाँ से भी दोस्त ये रिप्लाई सेंड करेगा कहाँ से, किसी ओपन पोर्ट से, मान लो पोर्ट नंबर 4000 फ्री है, उससे भेज दिया, और हिट कहाँ होगा ये मेरे पोर्ट नंबर 443 पे। इसलिए समझ में आया मैंने क्यों बोला था कि भाई इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सर्विस या इज यूज फॉर रिसेप्शन ऑफ सर्विस। क्लियर है ना ये चीज़ अब सभी को, श्योर। अच्छा, अब दोस्त देखो, सबसे पहले यहाँ पर हो क्या रहा है, वापस आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इसने सबसे पहले तो दोस्त रिसीव करा पेलोड को। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे सबसे पहली चीज़ है दोस्त आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस, राइट, या फिर आइडेंटिफाइंग सर्विस, कुछ भी बोल लो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस मतलब ये देखेगा कि भाई इस बंदे ने सबसे पहले तो जो सर्विस मुझे भेजी है, जो ये सोर्स पोर्ट उसका क्या रहेगा और उसका डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रहेगा। सोर्स पोर्ट कौन सा रहेगा, कोई भी ओपन पोर्ट, तो मान लो 1024, और डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा रहेगा 443, हाँ या ना। अब
आइडेंटिफिकेशन दोस्त एक्चुअली ये कर क्या रहा है कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है ये HTTPS के लिए जा रही है। तो HTTPS एक TCP प्रोटोकॉल है कि UDP प्रोटोकॉल है? क्यों TCP क्यों? क्योंकि यार अगर मैं सीधी सीधी बात है मैं लिखता हूँ www.gmail.com, अगर तो वो खुल जाता है, तो अगर वो मेरे पासवर्ड अगर मैच करता है तो मेरे पास रिप्लाई आता है तभी तो खुलता है वापस वो। अगर रिप्लाई नहीं आया तो खुलेगा कहाँ से भला? दूसरी चीज, अगर लिखा आता है सर्वर टू बिजी, वो भी तो एक तरह से रिप्लाई आ रहा है। एरर 404, वो भी तो रिप्लाई आ रहा है। कोई ना कोई रिप्लाई तो आएगा ना, तभी तो मुझे पता लगेगा ये क्या हो रहा है। हाँ है ना? बस तो फिर यूडीपी भी और साइड मॉडल में करता है क्या? सर सारे करते डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रैफिक। अगर वो TFTP का है, अगर वो TFTP का ट्रैफिक है तब तो इट विल यूज द DNS द UDP थिंग, वो UDP वहां पर अप्लाई कर देगा। अगर वॉइस ट्रैफिक है तो UDP अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर वो ट्रैफिक है HTTPS का, राइट, तो वो TCP लगाएगा। ठीक है ना? डिपेंड करता है प्रोटोकॉल्स पर। अब देखो दोस्त, मैंने बोला कि ये क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस। तो दोस्त आइडेंटिफिकेशन में एक्चुअली व्हाट इट्स डूइंग इट इज जस्ट आइडेंटिफाइंग वेदर इट्स अ TCP सर्विस और इट्स अ UDP सर्विस। ठीक है, तो इसको क्या पता लगा है कौन सी सर्विस है? TCP सर्विस है। तो देखो यहां पर दोस्त TCP सर्विस का एक होता है प्रोटोकॉल नंबर, TCP का प्रोटोकॉल नंबर होता है 6 और UDP का प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? 17। ठीक है, TCP प्रोटोकॉल नंबर 6 एंड UDP प्रोटोकॉल नंबर 17। यहाँ पर अब ये TCP ट्रैफिक है ना? तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये TCP ट्रैफिक है। तो ये क्या करेगा, ये लगाएगा पोर्ट नंबर यहाँ पर 6 लगा दिया इसने, प्रोटोकॉल नंबर, पोर्ट नंबर नहीं, सॉरी, प्रोटोकॉल नंबर 6 लगाया ना। अब ये इसने क्यों करा? ताकि जो रिसीवर है, रिसीवर को पता लगे कि भैया मैं तेरे को TCP की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो यू आर सपोज टू रिप्लाई मी बैक। सही बात है ना? यू आर सपोज टू रिप्लाई मी बैक बिकॉज आई एम सेंडिंग यू द TCP मैसेज, एग्री और नॉट एग्री? गुड। सर ये 6 क्यों है? आपका नाम क्या है? रजत। क्यों? सर तो कोई भी नंबर हो सकता है ना? तो आपका आपका नाम तो अमिताभ बच्चन भी हो सकता था ना, रजत ही क्यों है? सर तो दोस्त वो नंबर उन्होंने डिफाइन करा हुआ है ऑलरेडी कि TCP का प्रोटोकॉल नंबर 6 ही है, UDP का प्रोटोकॉल नंबर 17 ही है। ऐसा कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, ऐसा कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, उन्होंने वो प्री डिफाइंड है। ठीक है ना? प्लीज डोंट माइंड, मैंने इसलिए नहीं पूछा था कि मैं सीधे से भाई आपको क्वेश्चन पूछा था मैं भी क्वेश्चन नहीं पूछूं। मैं बस आपको चाहता था रियलाइज करवाना कि भाई एक्चुअली ये चीज़ होती है तो हमें माननी पड़ेगी। ठीक है ना? मेरा नाम शुक्र है अभिषेक भारद्वाज रखा, अभिषेक बच्चन नहीं रख लिया। हाँ, विद्रोह कर देता है। चलो, अब दोस्त ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस क्लियर है। अब यहाँ पर इसने दोस्त ये जो प्रोटोकॉल नंबर 6 जोड़ा है ना, एडिंग प्रोटोकॉल नंबर 6 इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग, एडिंग एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पर इसने दोस्त ये मल्टीप्लेक्स ही करा है, इसके इसमें और कुछ नहीं करा। सही बात, सबको क्लियर? अब आगे सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग, फ्लो कंट्रोल, विंडोइंग, एरर करेक्शन, ये सब क्या होते हैं देखते हैं जरा। ये मैंने वही बताया कि भाई पोर्ट नंबर लगने जरूरी है। चलो, हाँ देखो भाई, इस कंप्यूटर ने बोला मेरे को ये जो क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट ने मेरे पास सीधा भेज दिया कि भाई मेरे को तू अगर इसने इन्फॉर्मेशन भेजी, इसने वेब सर्वर पे जाना है और इसने लिख दिया यहाँ पर www डॉट वेब सर्वर जो भी उसका नाम है, मान लो networkbulls.com, और इट सेंड इट ऑन यूजिंग द वाया पोर्ट नंबर 80 if it's sending, right? Then friends, simply this page would be displayed that the action has been
cancelled, right? But if the person wants to open any website, then it will send the information and the information will be received on the port number listen on port 80. तो अब ये इसको reply generate करेगा. While sending a reply, he is saying received HTTP reply networkboost.com के वेब पेज को मैंने रिसीव करा है और इसने कौन से पोर्ट पे रिसीव करा होगा ये पोर्ट नंबर 80 पर बिकॉज इट्स HTTP है ना ठीक है ना तो फाइनली फ्रेंड्स इफ दिस इज हैपनिंग then the page would be opened for sure. Am I clear or not clear to all of us? Yes, sir. Good. Then FTP का भी दोस्त ऐसा ही होगा. अब इसने ftp.microsoft.com भेजा और इसने ये चीज़ रिसीव करी है यहाँ पर पोर्ट नंबर 21 पे तो ये 21 से रिप्लाई जनरेट करेगा और इसके पास ये पेज खुल गया फाइनली माइक्रोसॉफ्ट का. सही आगे चलो. ये समझ में आया कि इंफॉर्मेशन सेंड होती है हमेशा किसी ओपन पोर्ट से और रिसीव होती है कहाँ पर वेल नोन पोर्ट पे राइट. दीज आर सम ऑफ द पोर्ट नंबर्स व्हिच आई मेंशन हियर. तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ. ये उसका डिफरेंस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ है ना और उसके अलावा दो स्लाइड में जो नीचे नोट्स होते हैं ना पढ़ लो. सही है लिख रखा है ये भी. हाँ क्या वहाँ 8 बाइट लग रहा था. 4 बाइट्स बोला था वहाँ. वहाँ 8 बाइट है. सॉरी यार यहाँ पर 8 मान लो फिर. कौन है? ये रखा है. चलो आप देखो दोस्त मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है मैं आपको बता चुका. इफ इट इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोर्ट नंबर 80 दैट मीन्स HTTP or FTP SMTP then if these three are the ports that means it's a TCP service. And if it's a 53 which means DNS, 67 DHCP, 69 TFTP, if these are the three then it would be a UDP. राइट तो ये इंफॉर्मेशन इट हैज रिसीव्ड इसने आइडेंटिफाई करा और इसने ये पोर्ट नंबर डाले ना ट्रांसपोर्ट लेयर हैज डिड इट इटसेल्फ. ट्रांसपोर्ट लेयर ने खुद ये पोर्ट नंबर डाले हैं. समझ में आई मेरी बात. नाउ फ्रेंड्स इफ it belongs to TCP it will put the protocol number 6 and if it's a UDP packet it will put the protocol number 17 and then we'll send it to the network. But before that few more tasks will be done here. First of all, see, if this computer wants to say that hello, how are you, right? The information is supposed to go via the cable, right? Now if he has received hello, how are you, then hello is the first segment, how is the second segment, third segment, fourth segment, and this question mark would be the last segment that I've sent you, right? तो ये समझ में आया सेगमेंटेशन क्या होता है कि मैं एक ही मैसेज को छोटे छोटे सेगमेंट से बांट रहा हूँ. एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? गुड. नाउ सी फ्रेंड्स सी he sent computer A sent hello how are you, okay, hello how are you, hello how are you, question mark. Done or not? Done. Now if the receiver has received it this way, you hello how question are, so for him the message is you hello how question are. Does it actually make a sense? What does that mean? No. So friends अब इससे बचने के लिए what I will do, the source, the sender will say hello is the first segment out of 5, how is the second segment, R will be the third segment, U is the fourth segment, and question mark would be my fifth segment that I am sending you, right? So what he has done is sequencing, that means adding the sequence number. Clear or not clear? Very good. Now
The receiver has received it this way. You, hello, how, question, are. Even if the receiver has received this way, receiver will make it at the right place. First segment first, second segment, then third segment, then fourth segment, and the last segment. Right or wrong? To make it a proper sense for him that hello, how are you? This thing is called reassembling. That means what I want to say is, friends, that the sequencing will be done at the sender's side and reassembling would be done at the receiver's end. Clear or not clear? To all of us? Sure? Sure. Now see. Now see. Look. Now see, friends. What do you want to say? Hello, how are you? Hello is the first. How are you? Question mark. ये इन्फॉर्मेशन उसने प्रॉपर सेंड कर दी ना, कर दी सेंड. अब देखो दोस्त क्या हुआ. रिसीवर हैज रिसीव्ड दिस वे यू, हेलो, क्वेश्चन, आर. तो उसको सही से लगाएगा हेलो आर यू क्वेश्चन मार्क. तो भैया उसको सब कुछ तो मिल गया, लेकिन बीच में ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये मिसिंग रहेगा कि नहीं रहेगा? One particular segment is missing in the mid, right? So I told you this is what he will be checking, and if there is one particular segment missing that I was not able to receive, then I will ask you about that or not. I will ask you only for specifically for that, and you will give me the information for that. That means happy communication, right or wrong? So that's it. He will send the information just about this thing. Just send me this packet. In acknowledgement, he is saying I did not receive the packet, the segment number 2. So he will send it. Only the second segment he will send rather than sending it completely. He will put it at the right place, and finally there is a good message. Hello, how are you? Yes, go for it. Ask it. अरे पूछ लो. बाद में हेलो हेलो आया था हाँ. वो How? हाँ और वो सिंगल सेगमेंट का डिजाइन करता है. Yes. See, if you are not a see in this particular thing in OSI model, if at the end, if I say, did you get it all, right? If I ask you from, if I ask it from everyone, do you all get it? And then he says no, then I will simply say okay, what was missing? Please tell me. तो आप वो बताएंगे कि भाई this particular part is missing, right? So I'm supposed to say the same thing again, right? But if he says कुछ भी समझ नहीं आया, what I will say, भाई या तो क्लास के बाद मिल लेना, राइट? क्लास के बाद बैठ के वापस समझा दूंगा पूरा. बट फिर भी नहीं समझ में आया, चल भाई फिर समझ ले. अब 3 बार बता दिया, वो बोले नहीं समझ में आया, तो एक काम कर, वीडियो जा घर देख ले, समझ में आ जाए, ठीक है. अब अगले दिन वीडियो देख के आया, नहीं समझ में आया, तो भैया एक ना भाड़ बूढ़ समझ जा. तो भैया एक सीधी सी बात है, एक काम कर, थोड़ी एक चक्कू वक्कू और ले घर से, उतार दे मेरी गर्दन. But usually बात वो है कि the particular part that you are not able to get, I will explain that part to you again, right or wrong? Same thing. If the person, a receiver, did not get a particular segment, and just to get a same segment, I ask you for the complete thing again, that actually doesn't make a sense, right? In real life, that doesn't make a sense, right? Because मेरा खुद का भी तो टाइम खोटी हो रहा है ना, वो हो रहा है ना. मैं चाहता तो नहीं वो, मैं टाइम तो नहीं खराब करना चाहता ना. बस तो फिर मैं उससे वही मांगेगा ना जो चाहिए मेरे को. समझा? सर ये जो हरिओम. हाँ, सेगमेंटेशन हो रहा है तो इसका कोई रूल होता होगा कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा? वही तो मैंने पहले बोला बेटा कि दो डिवाइसेस के बीच में देयर विल बी प्रॉपर्ली विंडोइंग, they will be controlling the flow, that this is this particular these much packets I will send in one go, and then you send it this much at the one go. बोलो. ये दोनों में कैसे होगा? टीसीपी यूडीपी. हाँ, बस टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट देगा, यूडीपी में नो एक्नॉलेजमेंट. आगे चलो. आपने बताया था पैकेट लॉस होगा उसमें तो है. अब देखो वही बात है वापस. कंप्यूटर A is sending 3 windows and the B
हाँ, ये क्या हुआ? Computer A is sending 3 windows, right? 1, 2, 3, and B has received 3 windows, right? So he will send the acknowledgement 1, 2, 3. He has received the acknowledgement for how many windows? 3 windows, right? But this time I have received the acknowledgement for 3 windows, and apart from that I will try to send you 5 windows this time, right? I have received the acknowledgement for 3. That means with the 3 we both are good. So let's try to increase the pace. So now he is sending 5 windows, 1, 2, 3, 4, 5. But he was able to receive only 4 windows. तो कितने windows की acknowledgement generate करेगा वो? 1, 2, 3, 4. Received for 4 windows or not? So that means finally between the two, the segment has been decided. This is called windowing, flow control and windowing. I just want you to read about it. सर एक विंडो में मल्टीपल पैकेट्स मिल सकते Depends on the size of the window. साइज ऑफ द विंडो पे डिपेंड करेगा ना, विंडो साइज कितना है भाई। इस कमरे से, हैं साइज बड़ा है तो आ सकते हैं भाई तो बोल रहा हूँ सुन तो सही, इस कमरे से बाहर जाना है, अगर ये दरवाज़ा थोड़ा छोटा है तो सिर्फ एक ही बंदा एक बार में जा सकता है, लेकिन जितना ये अभी दरवाज़ा है भाई 3 बंदे टेढ़े मेढ़े हो गए एक बार में निकल सकते हैं, हाँ है ना। अभी विंडो साइज़ 3 का है, दरवाजे को थोड़ा छोटा कर दो, विंडो साइज़ 2 का हो गया, दरवाजे को और छोटा कर दो, विंडो साइज़ 1 का हो गया, अब उसको और छोटा कर दो तो विंडो साइज़ बचा ही नहीं। अब विंडो साइज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो CID के दया को बुला लो, वो दरवाज़ा तुरंत तोड़ देगा, साथ में एक आधी चीज़ और तोड़ देगा। खूब सारा स्पेस हो गया, निकल लो, आगे चलो। तो ये सीक्वेंस में जाता है कि पैरेलल जाता है मतलब डेटा? भाई ऑब्वियसली एक के बाद एक ही जाएगा। तो जब सीक्वेंस में जा रहा है तो चला जाना चाहिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक के बाद एक जाएगा तो मतलब सीक्वेंस ही है। हाँ तो सर क्या कहते हैं, पाँचों के पाँचों पहुँच जानी चाहिए ना। हाँ भाई, बीच में कोई पैकेट लॉस हो गया, देखो हमने वो चीज़ बनाई है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीज़ एकदम परफेक्ट ही हो गई है, बाई चांस इसमें गलती हो ही नहीं सकती है, तो पत्थर की लकीर है, हनुमान जी की पूंछ है, बढ़े जाएगी बढ़े जाएगी। भाई वो कभी ना कभी तो वो भी खराब होएगा ना कुछ तो प्रॉब्लम वो कभी भी क्रिएट कर सकता है ना। बस अच्छा आप देख लो इधर, हैं? मार गया। मार गया यार, मैं पहले वीडियो पॉज करूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर पे वी आर डन विद, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना कि दोस्त हर एक लेयर पे ना एक चीज़ होती है PDU, दैट मीन्स प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, ठीक है। यूनिट की वो डाटा आपका किस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो डाटा की यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्त वो चीज़ ना सिर्फ और सिर्फ एक डेटा ही होती है और कुछ नहीं है, डाटा है वो। यहाँ पर भी वो चीज़ डाटा है, यहाँ पर भी वो चीज़ डाटा है, और यहाँ पर ये जो डाटा है, डाटा के साथ में ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर जुड़ गया ना, तो इट मेक्स इट अ सेगमेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे द PDU इज सेगमेंट। नेटवर्क लेयर पे इसी के अंदर पेलोड पे, इसको तो भाई नेटवर्क लेयर पे तो ये सारी की सारी चीज़ें इसको एज अ पेलोड ही मिलेगी ना, है ना। तो दोस्त इस पेलोड के साथ में ये क्या करेगा, अपना नेटवर्क लेयर का हेडर जोड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ क्या बन जाएगी दोस्त, पैकेट। फिर डाटा लिंक लेयर पर यही चीज़ वापस होगी पेलोड के साथ में, ऊपर से आया पेलोड, पेलोड के साथ में डाटा लिंक का हेडर, डाटा लिंक का ट्रेलर वगैरह वगैरह जो भी जुड़ता है वो बन जाता है फ्रेम, और यहाँ पर फिजिकल लेयर पर वो रहता है क्या, बिट्स, बाइट्स नहीं बिट्स, ठीक है। तो अब बस बात ये है, तो अब दोस्त नेटवर्क लेयर के बारे में देखें थोड़ा सा। देखो नेटवर्क लेयर देखो क्या कर रही है,
यही मैंने लिखा है, डाटा 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 सेगमेंट नंबर is responsible for providing best path to a data to reach best path to data to reach destination. लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब मैंने आपको कल बताया था ना दोस्त कि नेटवर्क लेयर पे हम आईपी आईपीएक्स IPv6 एप्पल टॉक वगैरह इनकी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं ना। तो फ्रेंड्स आईपी एड्रेस इज कॉल्ड अ लॉजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस। व्हाई इट इज कॉल्ड अ लॉजिकल एड्रेस? Because it can be changed. Yes, absolutely right. Because the IP address of a device can be changed, right? It could be changed, but the MAC address of a device is always fixed. Yes or no? So a MAC address is called physical address and IP address is called a logical address. Clear or not clear? To all of us? Okay. Now see. See friends, what's happening on the network layer? Network layer is responsible to find the best path determination, है ना, मैंने ये बोला। अब देखो दोस्त, बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन वो कैसे करता है? बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग डिस्टेंस। ठीक है, बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग डिस्टेंस। अब राउटिंग डिस्टेंस के अंदर क्या है दोस्त? दो चीज होती है बाय डिफॉल्ट। तो एडी वैल्यू होती है इफ इट्स अ डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। आपको दो तीन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच में से कोई बेस्ट पाथ निकालना है तब तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, बताऊंगा अभी। और दूसरी चीज होती है मेट्रिक वैल्यू इफ इट्स द सेम राउटिंग प्रोटोकॉल विद मल्टीपल पाथ्स। ठीक है, अब समझो इस चीज को। दोस्त सबसे पहले देखो राउटिंग में डिस्टेंस में एडी वैल्यू क्या होती है। एडी वैल्यू क्या है? एक डेसिमल नंबर है। व्हाट इज अ डेसिमल नंबर? 0 to 9 any number, right? 0 to 9 any number to the base 10. Base 10 मतलब it has to be a complete number or it could be a combination of multiple decimal numbers, right? जाग गुड मॉर्निंग। डेसिमल नंबर में क्या है? इसकी रेंज होती है दोस्त 0 से 255 तक की रेंज है। ठीक है, which defines या which tells that how trustworthy का मतलब क्या है? हाँ हाँ, भरोसेमंद। दैट हाउ ट्रस्टवर्दी द राउट इज। ठीक है, और एक बात और कि लोअर इज एडी वैल्यू मोर ट्रस्टवर्दी या मोर रिलायबल, जो बोलना है बोल लो। कोई प्रॉब्लम इतने में? सबको क्लियर है? गुड। अब देखो दोस्त एडी वैल्यू, हाँ भाई देखो यार, एक काम करो इधर आ जाओ। हेलो तो सॉरी ऐसे करना, उस वाले से कर लो। अभी भी आओ। नाउ फ्रेंड्स वी आर 3 राउटर्स। ठीक है, मेरे पैरों में नेटवर्क है 10 का, इनके पैरों में नेटवर्क है 20 का, उनके पैरों में नेटवर्क है 30 का। सही बात। हमारे हाथों में जिससे राउटर 1 और राउटर 2 कनेक्टेड है नेटवर्क है 12 का, 1 से 2 के बीच में 12 का नेटवर्क। भाई ये 10 वो 20 वो 30 और ये 12 का नेटवर्क, 2 से 3 के बीच में 23 का नेटवर्क। सही बात, कोई प्रॉब्लम? अब देखो यार, मेरे पास से राइट, अगर मैं किसी भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है मेरे पास, ये 10 का और 12 का नेटवर्क मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, लेकिन ये 23 का 20 का नेटवर्क, 23 का नेटवर्क, 30 का नेटवर्क, ये तो मेरे लिए इनडायरेक्ट नेटवर्क्स हैं। तो अगर मैं किसी इनडायरेक्ट नेटवर्क के पास जाना चाहता हूँ, अगर मुझे मैनुअली कोई बंदा ये बताए, मैनुअली कोई बंदा मुझे ये बताए कि भाई मैं यहाँ से जाऊँगा, मतलब मैं इस वाले इंटरफेस पे जो भी आईपी है उस आईपी के पास जाऊँगा, हाँ है ना, मतलब मुझे मैनुअली अगर कोई बंदा आके आके सारी की सारी कमांड डिफाइन करेगा तो मेरे लिए उसका ज़्यादा रिलायबल होगा कि नहीं होगा? सी
मेरे साथ भाई ये बंदा डायरेक्टली कनेक्ट, मान लो हम तीनों के तीनों बंदे हैं, ठीक है, मेरे लिए ये बंदा डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा रिलायबल ये बंदा है कि नहीं है? वो बंदा इतना नहीं है, लेकिन जिस बंदे पे सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ वही कह रहा है कि वो भी जिंदा है, तो भाई सबसे ज्यादा उसी भरोसा करूंगा, इसके बाद उसी पे करूंगा, हाँ है ना? बस तो फिर डायरेक्टली कनेक्टेड की, थैंक यू जी, थैंक यू। बस तो फिर डायरेक्टली कनेक्टेड सबसे ज्यादा रिलायबल है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड उससे कम रिलायबल है, हाँ है ना? बस तो फिर जरा बताना मुझे, डायरेक्टली कनेक्टेड की एडी वैल्यू कितनी होगी? 0, दैट मीन्स मोस्ट रिलायबल, हाँ है ना? और इनडायरेक्ट नेटवर्क की 1, बेटा रेंज 0 से 255 है, 9 तक नहीं है, 1 होएगी, इसकी रेंज होएगी 1, ठीक है, इसकी वैल्यू होएगी 1 इनडायरेक्ट नेटवर्क की। दोस्त इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को ना हम स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में डिफाइन करते हैं, एक स्टैटिक एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू होती है कितनी? 1। और होता है एक राउटिंग प्रोटोकॉल रेप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसकी वैल्यू होती है 120। एक होता है EIGRP, उसकी 3 वैल्यूज होती है वैसे तो 90, एक वैल्यू 170 भी होती है, एक वैल्यू 5 भी होती है। जब EIGRP करेंगे तब बताऊंगा, अभी बस इतना मान लो कि 90 ही होती है और कुछ नहीं, अभी के लिए बस 90 होती है और कुछ नहीं होती, सही बात? सही बात, गुड। और OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसकी कितनी होती है? 110, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब देखो हैं, रुक जा, भावनाओं पे काबू रख, पहले EIGRP को देखो। IGP क्या होता है? हाँ वेरी गुड, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर क्या चीज होती है? हाँ रेप आता है, EIGRP आता है, OSPF आता है, बता तो दिया, और क्या बताऊं? EGP, वेरी गुड, उसके अंदर क्या आता है? हाँ, और अच्छा, और BGP की कितनी है? 20 होती है। अब कौन से वाले BGP की बात कर रहे हो, IBGP या EBGP? हाँ बताओ, तो अभी कंट्रोल रख, भावनाओं पे काबू रख, राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस करें नहीं तो सीधा IGP पे आ गया है, EGP पे आ गया है, रुक जा, अभी सिर्फ बेटा ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, जब हम आगे तक आएंगे ना वहाँ काम की बात तक, तो मैं आपको IGP EGP सब कुछ बताऊंगा। IGP क्या होता है, EGP क्या होता है ये बताऊंगा। EGP का जो एग्जांपल है वो BGP है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, वो CCNA में नहीं बताऊंगा, वो आपको CCNP में बताऊंगा, ठीक है? करेंगे सब कुछ, भावनाओं पे काबू रखो, चक्कर। हाँ बोल, बोल पूछ, हैं कब से? कब से हैं? भाई साहब जिस टाइम पे मैंने CCNA करा था उस टाइम से आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं, कम से कम शायद 6-7 साल तो हो चुके हैं। अब पता नहीं बुक में, भाई बुक में तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, बुक में तो यार बहुत सारी चीजें बताते हैं दोस्त, जो चीजें होती भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बुक में हो सकता है लिखा हुआ बहुत कुछ फालतू लिखते हैं, लेकिन कोर्स स्ट्रक्चर में नहीं है वो CCNA के दोस्त। मन 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 मस्त रहते मन। अब देख लो, मैं राउटर सोर्स से राउटर डेस्टिनेशन जाना चाहता हूँ, ठीक है? एक मेरे पास रास्ता है ये वाला, एक मेरे पास रास्ता है ये वाला, एक ये तीसरा रास्ता है, 3 रास्ते हो गए ना। मान लो ऊपर वाले रास्ते पे चल रहा है रिप, इस पे चल रहा है EIGRP, और इस पे चल रहा है मान लो कौन सा, OSPF, ठीक है? तो इन तीनों में सबसे मेरे पास बेस्ट रास्ता कौन सा होगा जाने के लिए? EIGRP, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी एडी वैल्यू 90 है, तो जिसकी एडी वैल्यू कम है वो बेस्ट पाथ बन गया। तो समझ आया कि मैंने बोला था कि बेस्ट पाथ निकालता है ऑन द बेसिस ऑफ एडी वैल्यू, वो कैसे निकालता है? अगर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल हो तो एडी वैल्यू के बेस पे निकालते हैं, हाँ है ना? अब देखो अगर सेम राउटिंग प्रोटोकॉल है, बोलो कौन सा चलाऊं, रेप, EIGRP, OSPF? OSPF, ठीक है। अगर इस रास्ते से जा रहा है दोस्त OSPF, इससे भी OSPF और इससे भी OSPF, तीनों में OSPF है, या OSPF की मेट्रिक वैल्यू मतलब वो किस चीज के ऊपर काम करता है, किस चीज को बेसिक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल मान के काम करता है,
भाई अगर मैं इस रास्ते से R1 के थ्रू जाऊंगा तो मान लो R1 से R सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने की मेरी कॉस्ट है मान लो कितनी 10, नीचे वाले रास्ते से मेरी कॉस्ट है मान लो 20 और सबसे नीचे वाले रास्ते से मेरी कॉस्ट है मान लो 7, तो कॉस्ट किससे कम है? थर्ड वाले रास्ते से ना। तो दोस्त OSPF में क्या होता है कि कॉस्ट इज द मेट्रिक वैल्यू, अगर सेम राउटिंग प्रोटोकॉल है तो उसकी मेट्रिक वैल्यू के बेस पे करेगा ना वो फाइंड पाथ अपना। तो दोस्त ये डिसीजंस हमारे नेटवर्क लेयर पे परफॉर्म होते हैं, सही बात है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बात बोली थी, प्रोवाइड्स अ लॉजिकल टोपोलॉजी, डिफाइंस लेयर 3 एड्रेस एंड फाइंड द बेस्ट पाथ टू लॉजिकल एड्रेस डेस्टिनेशन। देख लो मैंने बताए थे राउटिंग प्रोटोकॉल यही होते हैं, रेप, IIGRP, OSPF, EIGRP, और ये जो होते हैं IP, IPX, एप्पल टॉक, IPv6, है ना, ये मैंने बोले थे ना नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। दोस्त नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को हम राउटेड प्रोटोकॉल्स बोल देते हैं। राउटिंग लेटर प्रोटोकॉल, तो ये भी समझ में आया है या नहीं आया है? पक्का सबको? बस तो फिर सर अटेंडेंस ले लीजिए। बिल्कुल सही। देखो अगर इस पाथ का कॉस्ट भी 7 है, इस पाथ का कॉस्ट भी 7 है, तो वो करेगा इक्वल लोड बैलेंसिंग। मतलब कि दो भाई मेरे पास यहाँ से वहाँ जाने के मेरे दो रास्ते हैं, जब दो रास्ते हैं तो मैं किसी एक को ही फॉलो क्यों करूँ? मतलब दूसरे रास्ते में ये अगर यहाँ से भी वैल्यू 10 है, यहाँ से वैल्यू 10 है, दोनों रास्तों से वैल्यू 10 है ना, तो मैं सिर्फ इसी रास्ते से जाऊँ और ये R4 R5 वाले से जाऊँ ना, तो मतलब यहाँ पर ये 2 लाख का राउटर ये और 2 लाख का राउटर ये, मैंने बिना वहाँ 4 लाख के राउटर की ऐसी तैसी कर रखी है, पैसे खराब कर रखे हैं 4 लाख रुपए। मैं ऐसा क्यों करना चाहूँगा? तो मैं करूँगा दोस्त इक्वल लोड बैलेंसिंग, मतलब कि यहाँ से एक पैकेट, यहाँ से एक पैकेट, यहाँ से एक पैकेट, यहाँ से एक पैकेट, यहाँ से, दोनों रास्तों को यूटिलाइज करूँगा मैं। इसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। हाँ लोड बैलेंसिंग, ठीक है। चलो अब देखो दोस्त, राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एक चीज समझ में आई है। अब देखो जरा नेटवर्क लेयर पर क्या हो रहा है। नेटवर्क लेयर पे दोस्त सबसे पहले तो इसने यही यहाँ पर सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP जोड़ी या नहीं जोड़ी? जोड़ दी ना। उसके अलावा दोस्त याद करो जरा, OSI मॉडल को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों बनाया गया था? ताकि डिफरेंट वेंडर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाए, हाँ कि ना? बस तो फिर दोस्त यहाँ पर ये एक चीज और लगाएगा, क्या? NT, मतलब नेटवर्क टाइप। नेटवर्क टाइप के अंदर ये क्या लगाएगा कि भाई अगर तो EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक है, तो वो EIGRP का प्रोटोकॉल नंबर लगाएगा जो होता है 88। अगर तो वो चल रहा है OSPF तो OSPF का प्रोटोकॉल नंबर लगाएगा कितना? 89, ठीक है, ठीक है ना भाई। अपनी साइड से मैं रिसीवर को पहले ही बता रहा हूँ कि मैं तेरे को OSPF की भाषा में कुछ तेरे को सेंड कर रहा हूँ मैं, हाँ है ना। देखो यार दोस्त जरा चीज को समझो, राउटर टू राउटर जब इंफॉर्मेशन जा रही है तो ये इन राउटर्स भेज तो एक्चुअली पैकेट ही रहे हैं, हाँ या ना। राउटर्स एक्चुअली पैकेट ही भेज रहे हैं, लेकिन दोनों राउटर को पता तो होना चाहिए ना कि ये पैकेट हम कौन सी भाषा में भेज रहे हैं, किस भाषा में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो दोस्त यहाँ पर इफ वी आर कम्युनिकेटिंग इन टर्म्स ऑफ OSPF then I will use the OSPF का प्रोटोकॉल नंबर। भाई the device cannot understand what is written there, right? But with the protocol number, if the protocol number is 89, that means it is for the OSPF. Agree or not agree? Agree. Just that. This was the reason so that the multiple vendors and multiple protocols can communicate with each other. हाँ है ना? So this is what is getting resolved through this network type. One of the small things, right? Clear to all? Sure? Very good. And then friends, this thing is called a packet. Now always remember that the size of the packet could be from 46 bytes to 1500 bytes. समझे बात को? Size of the packet could be from 46 bytes to 1500 bytes. Clear or not clear? That means कि अगर whatever I am sending you, right? Whatever I am sending you, I am receiving a segment from the upper model layer, right? See, ये जो payload है,
ये पेलोड एक्चुअली क्या है? पूरा पूरा पैकेट सब सेगमेंट है। इसको जो सेगमेंट मिला है वही तो इसके लिए पेलोड है ना। बस सर ठीक है, तो अब इसको जो जस्ट along with the segment whatever it has added, right, minimum to minimum doesn't matter how short the thing is, how big the thing is, what type of message I'm sending, but minimum size of the packet would be 46 bytes at least. That means कि ये सारी information HTTPS, HTML, session details, source port, destination port, and then protocol number, right? Port protocol number 6 for UDP, 17 for DCP, or it could be network type, it could be source IP, it could be destination IP. ये सारी की सारी चीजें मिला मिलाकर कुछ तो उसका साइज बनेगा ना, minimum to minimum size. The minimum size would be 46 bytes. Either it could be 46 or 47 or 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, ऐसे करते करते 1500 तक. It has to be a complete number, not a fractional number. सही है? Has to be a complete number, not a fractional number. अब maximum size would be 1500 bytes. मतलब कि if I want to download something which is more than 1500 bytes, तो मैं क्या करूंगा दोस्त, मैं 1500 bytes 1500 bytes 1500 bytes 1500 bytes से कई सारे पैकेट्स को डाउनलोड करूंगा एक्चुअली. समझे बात को? क्लियर है सबको? इस पैकेट साइज को हम लोग बोल सकते हैं MTU. दैट मीन्स, हाँ, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट. क्लियर और नॉट क्लियर? बस ये राउटेड प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल वाली चीज एक बार देख लेना, ठीक है? एक मिनट रुको जरा. हाँ जी, तो अब देख लो जरा दोस्त, यहाँ पर डाटा 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 बन गया सेगमेंट. सेगमेंट के साथ में जुड़ गया नेटवर्क लेयर का हेडर, तो ये बन गया क्या? पैकेट. राउटर इज द डिवाइस दैट वर्क्स ऑन दिस लेयर. बस उसके बाद है मेरे पास अब डाटा लिंक लेयर. अब दोस्त देखो जरा डाटा लिंक लेयर क्या कर रही है. सब चीज छोड़ो, बस इतना देख लो कि ये मोस्ट ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क प्राइमरीली ऑपरेट्स ऑन द डेटा लिंक लेयर. छोड़ो इसको, ठीक है? जितने भी हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं ना दोस्त, मोस्ट ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन विच लेयर? डेटा लिंक लेयर. सही है? अब देखो, बस देख लो दोस्त, ये जो वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं ये ऑपरेट करते हैं डेटा लिंक लेयर पे और फिजिकल लेयर पे, ठीक है? फॉर एग्जांपल फ्रेम रिले स्विच, MPLS, ये बाय डिफॉल्ट दोस्त लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हैं जो लेयर 2 के डिवाइस पे चलेंगे, लेकिन वो लेयर 3 के कुछ एनकैप्सुलेशंस को फॉलो करते हैं. वो चीज़ें जब हम वैन प्रोटोकॉल करेंगे काफ़ी अच्छे समझाएंगे, धीरे धीरे कोर्स में आगे चलेंगे समझ में आएगी. अभी रुक जाओ, ठीक है? बस अभी इतना याद रखो कि वैन एरिया प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर होंगे. सही है? अब यहाँ पर दोस्त मैक एड्रेस होता है. मैक एड्रेस के बारे में मैंने बताया हुआ है ना? तो यहाँ पर क्या होगा देखो, डाटा लिंक लेयर पर या डाटा लिंक लेयर पे देखो दोस्त, डाटा लिंक लेयर पे अपने पास जुड़ता है एक तो सोर्स मैक एड्रेस और एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. हाँ है ना? और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी दोस्त, एक चीज़ और जुड़ेगी, क्या? प्रोटोकॉल टाइप. अब ये प्रोटोकॉल टाइप क्या है, कुछ याद है? हाँ, वो अगर आर्प है तो 0x806, अगर ICMP सर्विस है तो 0x800, सॉरी IP सर्विस है तो. सही है? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? 08? सर वो ICMP के लिए रिक्वेस्ट की होगी, इसके लिए नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा. वो भी इसका एक पार्ट है, लेकिन वो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा. अब देखो दोस्त, यहाँ पर दो चीज़ है. एक होता है प्रीएम्बल, और एक होता है यहाँ पर जो आपने शायद इंजीनियरिंग में अपने में पढ़ा हो, फ्रेम चेक, सीक्वेंस एंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. अच्छा, क्या होता है वो? एरर डिटेक्शन के लिए होता है वो. ठीक है,
तो दोस्त ये दो चीज़ें, ये दो भी मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ के आओ। आपके पास चार चीज़ होगी, विंडोइंग, फ्लो कंट्रोल, प्रीएम्बल एंड FCS/CRC। फाइनली यहाँ बन गया फ्रेम। फ्रेम पे फिजिकल लेयर पे जाके कन्वर्ट हो जाएगा बिट्स में। और ये देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म्स एरर डिटेक्शन एंड नॉट करेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ये एनएलसी क्या है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो सर इसी का पार्ट हाँ, error correction is performed on the basis of बस ये हो गया। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, आपने लिखा है करेक्शन ऊपर, आपने लिखा हुआ है करेक्शन होता नहीं, एरर करेक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अब यहाँ पर इन चीज़ों को याद रख लेना कि अगर वो सेम नेटवर्क से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जा रहा है वाया स्विच, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लेयर 2, अगर वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा रहा है तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर इस एक स्विच से दो कंप्यूटर कनेक्टेड है, दोनों अगर सेम नेटवर्क में है तो दे कैन कम्युनिकेट ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। बट अगर एक स्विच से दो कंप्यूटर्स हैं, दोनों अलग अलग नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, देन द नीड इज अ लेयर 3 डिवाइस। बस यही दो पॉइंट इनमें लिखे हुए हैं थोड़ा टेक्निकल भाषा में। स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल बनती है जिसको वो ASIC चिप में सेव करता है। मैक एड्रेस टेबल बताई थी ना मैंने। ASIC मतलब एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किटरी, या इसको इंटीग्रेटेड चिप बोल लो, बहुत है। वैसे इंटीग्रेटेड सर्किटरी होता है, लेकिन सर्किटरी की कोई समझ आता नहीं। ये वही FCS/CRC के बारे में। और फिजिकल लेयर पे सारी की सारी चीज़ें 0 1 1 0 के रूप में फ्लो करेंगी। बस खत्म। दैट्स ऑल अबाउट द 7 लेयर्स। विंडोइंग, फ्लो कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट लेयर कंपोनेंट्स है। यहाँ पर दो चीज़ होती है, 802.3 और 802.1। 8 डाटा लिंक लेयर पे 802.3 मतलब कि वो ईथरनेट फ्रेम है, कि भाई वो तुझे अपना ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ भेज रहा है। भाई लेंथ यही होती है ना उसकी। तो मैं तेरे साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वो कम्युनिकेशन आई एम डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ। लेंथ के पैकेट्स भेज रहा हूँ, इतने इतने लेंथ के पैकेट्स। तो इट वुड बी 802.3, जिसमें 802 ग्रुप है, 3 उसका नंबर है, 802 ग्रुप है, 1 उसका नंबर है। यहाँ पर ये क्या है, LLC फ्रेम टाइप। LLC फ्रेम टाइप की भैया मैं IP यूज़ कर रहा हूँ या IPX या एप्पल टॉक या IPv6, तेरे साथ मैं कौन से प्रोटोकॉल्स अभी फॉलो कर रहा हूँ या कौन सा मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। सही बात है, समझ में आया LLC जो आप पूछ रहे थे? सही है, बस। तो अब ये ले जाओ, इसको जो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। साथ में मेरे से वो उसकी TCP/IP की भी